Good morning, all of you. Welcome to your SST class, students. Today I am covering the next topic of your chapter 4, that is globalization and Indian economy. And the today's topic is foreign trade and integration of market. Students, till today I explained you in this chapter that what is globalization and how the multinational companies work in the other countries, जिसमें हमने कल पढ़ा था that how the MNCs interlinking the production across the country. Okay, so today's topic is foreign trade and integration of the market. First of all, you may all know the meaning of foreign trade. What do you mean by foreign trade? Students, simply if I told you that foreign trade is the trade that one country's done with the other countries, one country having the trade relationship with the other countries, that is called foreign trade. Okay, yesterday I explained you the meaning of foreign investment. Foreign investment is the investment where the MNCs put their investment in the other countries. Okay, just like this, foreign trade is the trade when we are having the trade relationship with the other countries. For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. लॉन्ग टाइम से फॉरेन ट्रेड जो है वो एक मेन चैनल रहा है कंट्रीज़ को कनेक्ट करने वाला. In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to market both in the east and west. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमने इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप को डिस्कस किया है साउथ एशिया और द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन बोथ द साइड्स ईस्ट एंड वेस्ट. So students, foreign trade help us to develop the country. Foreign trade is very beneficial for the country's development. Why? Because foreign trade से क्या होता है, हमारे जो relationship हैं that developed with the other countries, and foreign trade also give us an opportunity to develop to develop the relationship with the other countries, as well as it also gives the opportunity the seller to go for in the other countries to sell their products, कि वो अपने products को other countries में भी सेल कर सकता है. ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. Let us read it. To put it simply, foreign trade create an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. कि ये फॉरेन ट्रेड क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो डोमेस्टिक यानी कि अपनी ओन कंट्री की मार्केट से बाहर जाए. प्रोडक्शन कैन सेल देयर प्रोड्यूस इनटू नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन द मार्केट लोकेटेड इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब उसको एक कंपटीशन लेवल मिलता है. नाउ दे कैन कम्पीट विद द अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के साथ वो कम्पीट कर सकते हैं. एंड सिमिलरली फॉर द बायर्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द अनदर country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. और वो क्या कहता है कि एक तो उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने प्रोडक्ट को बाहर सेल करने की, और दूसरी जो बायर्स हैं, यहाँ तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो रहा है फॉरेन ट्रेड से, बायर को क्या बेनिफिट हो रहा है, बायर को बेनिफिट ये हो रहा है कि जब इम्पोर्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस्ड इन द अनदर कंट्री, जब दूसरे कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के गुड्स जो कि किसी और कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर इन आर कंट्री, इम्पोर्ट होते हैं हमारे कंट्री में, देन वी हैव द लॉट ऑफ चॉइस टू परचेज द थिंग्स को परचेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस. वी कैन ऑल्सो चूज दैट गुड्स दोज आर नॉट बिलोंग्स टू आवर कंट्री. ठीक है, सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर प्रोड्यूसर्स एंड दिस फॉर द कंज्यूमर. ओके, नाउ कम इन द नेक्स्ट पेज. Here we have the example of Chinese toys in India.
With this example we can easily understand that how the foreign trade interlinking the market, वो मार्केट को किस तरह से इंटरलिंक कर रही है. Here as we all know that in our country maximum toys are came from China. चाइना से आ रहे थे. चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइसेस. और यहाँ पर टॉयज क्या सोल्ड होते हैं? एट हाई प्राइसेस. नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज. और बायर के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों के लिए जो टॉयज है वो चूज़ कर सकता है इंडियन और चाइनीज़ टॉयज में से. cheaper prices, Chinese toys, because of the cheaper prices of new designs Chinese toys become more popular in the Indian market. अब इंडियन मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ ज़्यादा पॉपुलर हो गए. वाई? बिकॉज ऑफ द चीप रेट्स, बिकॉज ऑफ इट्स low rates. Okay, 70 to 80% of the toys shops have replaced Indian toys with Chinese toys. अब क्या हुआ कि इंडिया की जो टॉय मार्केट थी वो ऑलमोस्ट टोटली ख़त्म हो गई. वाई? बिकॉज 70 to 80% टॉयज़ मार्केट में कहाँ के आ गए? चाइना के आ गए. ठीक है. टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर. अब टॉयज़ क्या हो गए? चीप हो गए एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम पीरियड. अब यहाँ पर जब टॉयज़ चीप हो गए तो बेनिफिट कौन ले रहा है? बेनिफिट इज़ गिवन इज़ टेकन बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर ले रहा है कि टॉयज़ सस्ते हो गए हैं. नाउ दे कैन प्रोवाइड द टॉयज़ टू देयर चाइल्ड. वो अपने बच्चे को टॉयज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं. और यहाँ पर और किसको बेनिफिट हो रहा है? सेलर को भी बेनिफिट हो रहा है कि उसकी थिंग्स ज़्यादा अमाउंट में बिक रही हैं. बट यहाँ पर किसी को लॉस भी हो रहा है. लॉस किसे हो रहा है? लॉस हो रहा है इंडियन टॉयज़ मेकर को जिनकी मार्केट ख़त्म हो गई. वाई? बिकॉज देयर मार्केट इज़ फुली रिप्लेस्ड बाय द चाइनीज़ टॉयज़. चाइनीज़ टॉयज़ के द्वारा वो रिप्लेस हो गई. वट इज़ हैपनिंग हेयर? यहाँ पर अब यही चीज़ें देखो, वो बता रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है. एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉयज़ कम इन टू इंडियन मार्केट. कंपटीशन लेवल बढ़ गया इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ का. चाइनीज़ टॉयज़ अपने आप को बेटर प्रूव कर पाए और कम प्राइसेस में, इसलिए उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और इंडियन टॉयज़ की जो वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई. द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर. दे वर फेस लॉसेस एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस. तो एक के लिए बेनिफिट हो गया और दूसरे के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? दूसरे को नुकसान हो गया. एक को तो प्रॉफिट हुआ, दूसरे को लॉस हो गया. ठीक है. इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस. Prices of similar goods in the two markets tend to become equal, and the producer in the two countries now closely compete with each other, even though they are separated by thousands of miles. अब यहाँ पर एक क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो प्रोड्यूसर जो कि पता नहीं thousands of miles दूर बैठे हैं. One producer is in China and second producer is in America. But now they are both are facing the competition. Why? Because in the market both have to sell their products in the world market. उन दोनों को वर्ल्ड मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? द मैक्सिमम बेनिफिट गोज़ टू द कंज्यूमर, because now consumer can able to got maximum things at low prices, or we can say that now consumer able to get good things, good quality at cheap rates. Why? Because of the competition level. Every company, every organization try to provide more and more benefits, more and more quality at cheap rates to the consumer. यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वालिटी बेनिफिट कंज्यूमर को होता है व्हेन द फॉरेन ट्रेड इज़ इंटरलिंकिंग विद द कंट्रीज. ओके.
So this is your foreign trade, and in this topic we learn that foreign trade is beneficial both for the producers as well as for the consumer, but maximum benefit goes to consumer. ठीक है, here we have foreign trade has thus results in connecting the market or integration of market in different countries. तो foreign trade कनेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है डिफरेंट मार्केट्स को. Okay, now come on the next topic, that is what is globalization. Students, I already told you or explain you the meaning of globalization when I start the chapter in my introduction of the chapter. So just recall it. What do you mean by globalization? Just think, what do you mean by globalization? Globalization is a process under which market or the word market come close to each other. We can say that because of globalization the different countries come close to each other. जो different countries हैं, they are come close to each other with the help of trade. Okay, in the past 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production. अगर हम पास्ट 2-3 डिकेड्स की बात करें तो मैक्सिमम MNCs. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया था कि व्हेन market interlinking, that is globalization. Okay, so let us read it. In the past 2 or 3 decades more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production. Okay, foreign investment by MNCs in these countries have been rising. foreign investment in MNCs की increase हो रही है. At the same time foreign trade between countries has been rising rapidly. और इसी तरह से foreign trade भी increase हो रहा है. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. आज की डेट की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड का लार्ज पार्ट कवर्ड कौन कर रहा है? MNCs कर रही हैं. MNCs मीनिंग ही फॉरेन ट्रेड है. ठीक है, चलिए. फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स ऑफ इंडिया इन इंडिया not only produce cars for the Indian market, it also export cars to other developing countries. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्ड मोटर्स की. इट्स अमेरिकन कंपनी एग्जैक्टली, बट इट प्रोड्यूसेस कार्स इन इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया इट ऑल्सो एक्सपोर्ट द कार्स इन द अदर कंट्रीज around the world. Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. और इसी तरह से MNCs जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड नॉट ओनली गुड्स बट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं. सो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन. ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है. The result of great foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market. अब जब हम फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लार्ज स्केल पर तो हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है और ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़, और कंट्रीज़ में इंटीग्रेशन हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन इन दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू ट्रेड. Because of globalization, more and more goods and services, investment and technologies are moving between the countries. और because of globalization क्या आ रहा है? goods और services between the countries जो हैं वो move कर रही हैं, investment हो रही है because of globalization. ठीक है, and because of this more regions of the world come close with each other. contact में एक दूसरे के पास आ रहे हैं. beside the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड्स इंटरचेंज हो रहे हैं, सर्विसेज इंटरचेंज हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी और टेक्नोलॉजी भी. बट इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कंट्रीज़ जो हैं कनेक्टेड हो रही हैं. दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल. और इससे क्या हो रहा है? पीपल्स की मूवमेंट हो रही है. बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी रीड इन द हिस्ट्री टॉपिक ऑल्सो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड.
If you remember, in that topic also we learned the 3 flows. हमने 3 flows पढ़े थे उसमें, लेबर, कैपिटल एंड थर्ड इज लेबर, कैपिटल एंड गुड्स. ये 3 flows पढ़े थे. तो दिस इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो. 3 flows, goods are transported, labor means people are transported, capital money तो ट्रांसपोर्ट हो ही रही है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? वो कैपिटल है, वो मनी है जो ट्रांसफ़र हो रही है. एक कंट्री की मनी दूसरे कंट्री में यूज़ हो रही है. ठीक है. अब लेबर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड. हाउ द लेबर इज़ ट्रांसपोर्टेड, हाउ द पीपल इज़ ट्रांसपोर्टेड. क्या होता है, एक कंपनी के लोग जब दूसरी कंपनी में सेटअप होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर सेटअप करते हैं, तो दैट दे सेंड देयर पीपल ऑल्सो. वो अपने लोगों को भी सेंड करते हैं. इफ़ यू अगर आपने देखा होगा कि आज के टाइम में बहुत सारे पीपल ऐसे हैं, दोज आर वर्किंग इन MNCs एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द जॉब्स in the other countries. Company is related to our country, but they send their employees to the other countries. This is the transformation of people. And when people are moving, then that is connection is more close. तब अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो और ज़्यादा क्लोज हो जाता है. वाई? बिकॉज वेन पीपल आर माइग्रेटेड, देन they are not migrated the things, but they are also migrated the culture, customs and many more things. ठीक है. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs or better education. जब people move कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है. और पीपल किस लिए मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग फॉर जॉब्स, फॉर बेटर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए, बेटर सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए. ठीक है. इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें, हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू द वेरियस रिस्ट्रिक्शंस. लोगों के बीच में जो मूवमेंट ऑफ पीपल है वो कम हुई है. वाई? बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. इफ़ आई टोल्ड यू दिस इज़ अबाउट वीज़ा. हम नॉर्मली जब हम दूसरे कंट्री में शिफ्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा वीज़ा लग गया. अब वीज़ा क्या है? वीज़ा इज़ द परमिशन that is given by a particular country to allow the another people to come in that countries. If we want to go to America, then we want the visa of that country. and लोग आम तौर पर बात करते हैं कि वहाँ का वीज़ा लगना मुश्किल है और वहाँ का इजी है. तो कहाँ का इजी है? जहाँ जिस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कम ले रही है या कम स्ट्रिक्ट है. But the people, countries, those government is very much strict about the migration. Their visa, we can find that visa of that country is very with a lot of efforts, or after many efforts, और rare. कम मिलता है, रेयर मिलता है, एफर्ट्स के बाद मिलता है. सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल. और जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को हमें फुलफ़िल करना पड़ता है. देन वी गॉट द वीज़ा, तब हमें वो वीज़ा मिलता है. ओके. सो दिस इज़ अबाउट योर ग्लोबलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. अगला टॉपिक कि वो फैक्टर जो कि ग्लोबलाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. ओके. जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टुडे वी हैव जस्ट ओनली दिस ग्लोबलाइजेशन. ओके. थैंक यू.